Assalamu alaikum everyone, this is Ara Shah and today our topic for discussion is juvenile delinquency. CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्रिमिनोलॉजी के पेपर में juvenile delinquency का टॉपिक इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. द रीज़न इज़ दैट कि हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. In today's lecture, we'll be discussing its introduction, its history and its types. I have tried to keep the videos short so that आपके लिए जो है ये ज़्यादा easy हो जाए. Or secondly, I will be uploading the videos on criminology topics daily so that those people who just cannot attend the academies for any reason or they just want to study at home for the CSS उनके लिए easy हो जाए criminology के पेपर की तैयारी करना. So let's start. So the first thing that we will be discussing in today's lecture is etymology. For those who don't know कि etymology का क्या meaning है, etymology is basically means the origin of words. Like you all can see that juvenile delinquency is the composite of two words, juvenile and delinquency. Juvenile की etymology you can say it has been originated from the word juvenis, which is a Latin word, और इसका मतलब है teenage, underage या under 18. और juvenile को अगर हम define करें तो a young person who is not yet an adult is known as juvenile. Talking about delinquency, delinquency का word Latin word delinquent से निकला है, और अगर हम इससे भी ऊपर जाएं तो delinquent का word it has been originated from the Latin word delinquentia. I have not mentioned it here but just told you for your information. अब delinquency, delinquent या delinquentia का जो meaning है it means literal meaning. I am talking about literal meaning. Omit, leave या abandon. और अगर हम delinquency की definition देखें तो delinquency is basically an act या conduct of a juvenile that is antisocial, that is against the norms of society, or you can say that is socially undesirable. हमारी सोसाइटी के डिफरेंट स्पीयर्स में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं. लाइक फॉर पेरेंट्स, हर वो बच्चा जो कि ज़िद्दी है एंड दैट इज़ डिसोबीडियंट, वो क्या है, वो डिलिक्वेंट है. लेकिन एक स्कूल के लिए हर वो बच्चा दैट इज़ इन्वॉल्व इन बैड एक्टिविटीज़, ही और शी इज़ अ डिलिक्वेंट. लेकिन अगर हम पुलिस को देखें तो पुलिस के लिए जुवेनाइल डिलिक्वेंसी या यू कैन से द जुवेनाइल डिलिक्वेंट कौन है, हर अंडर एज बच्चा that is involved in criminal activities. So now you have seen कि कैसे different spheres of society में different interpretations है juvenile delinquency की. Now we will talk about the definition of juvenile delinquency. So now let's see the definition of juvenile delinquency. So what is juvenile delinquency? अगर मैं आपको आसान अल्फाज में इसका एक्सप्लेन करूँ, juvenile delinquency is basically a criminal behavior that is being committed by a minor. इसके अलावा हम इस तरह भी कह सकते हैं दैट एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ अ जुवेनाइल और सिंपली द बिहेवियर ऑफ द जुवेनाइल दैट इज़ सोशली अनडिज़ायरेबल और इट इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी. तो ये सारे एक्ट्स जो हैं दे आर नॉन एज जुवेनाइल डिलिक्वेंसी. इसके अलावा स्लाइड में एक और डेफिनेशन भी मैंने लिखी है दैट इज़ द फेलियर ऑफ चिल्ड्रेन टू मीट सर्टेन ऑब्लिगेशंस एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय द सोसाइटी. इट इज़ नॉन एज जुवेनाइल डिलिक्वेंसी. बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पेपर में आपको जो डेफिनेशन है एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको मेंशन करनी पड़ती है एंड शुड बी सम सोर्स. ठीक है, तो फ्रॉम इन दिस स्लाइड मैंने जो है डिक्शनरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी में से जो है डेफिनेशन आपको मेंशन की है दैट इज़ कंडक्ट ऑफ जुवेनाइल्स कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी सोशल बिहेवियर विच गेट्स बियॉन्ड लॉ एंड इज सब्जेक्टेड टू लीगल एक्शन. सो आप इस डेफिनेशन को जो है जो इसके सोर्स के साथ यू कैन मेंशन इट इन योर पेपर. इसके अलावा हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी को अगर हम और तरह आप इसे थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली डिफाइन इज एज एन इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड with an antisocial behavior which is considered as deviant by the police of a specific community. तो ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं की बट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, और आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं. लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है दो डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हैं फॉर द डाइवर्सिटी. ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो सोर्स वाली डेफिनेशन है इट विल बी मोर बेनिफिशियल, इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी. हिस्ट्री एज सच कभी भी पेपर में एग्जाम में CSS के नहीं पूछी जाती, बट फॉर द स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन and in order to understand that how the juvenile delinquency has evolved over the period of time, we must study it. So now let's start. The way juvenile delinquency it has been perceived and responded, it has changed over time. Initially juvenile delinquency it was greatly influenced by the religion और इसे जो है सिर्फ एक लीगल वायलेशन नहीं कंसिडर किया जाता था बल्कि एक मोरल
वायलेशन जो है इससे कंसिडर किया जाता था। अगर हम अमेरिकन कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो अमेरिकन कॉलोनियल सोसाइटी इट वाज रियली हार्श टुवर्ड्स द चिल्ड्रन एंड यू कैन जस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि बैक इन 1641 मैसाचुसेट्स के जनरल कोर्ट ने एक स्टबन चाइल्ड लॉ के नाम से एक लॉ पास किया एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ children who disobeyed their parents they would be put to death. So you can see that how much harsh they were towards their children and towards the juvenile delinquents. इस लॉ की जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन जिस लॉ की जो लैंग्वेज थी इट वाज ड्राइव फ्रॉम बिब्लिकल बुक ऑफ डिटोनॉमी बेसिकली फिफ्थ बुक है ऑफ बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट और however this law was only implemented in Massachusetts. Outside Massachusetts, children who were found guilty of the serious crimes they were punished by corporal punishments जिस तरह के they were inflicted physical pain like whipping से mutilating. So इस तरह जो है बाकी कॉलोनीज़ में जो है जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स को साथ जो है वो ऐसे ट्रीट किया जाता था. ये जो सारी अप्रोच थी टुवर्ड्स द जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स इट वाज प्यूरिटानिकल इन नेचर, इट वाज प्यूरिटानिकल अप्रोच और ये प्रिमिटिव थी, इट वाज अग्रेसिव, इट वाज ब्रूटल एंड देयरफॉर इट केम अंडर द अटैक. लोगों ने इसके ऊपर इतराज़ उठाना शुरू किया एंड पीपल वांटेड टू चेंज दिस अप्रोच टुवर्ड्स द जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स. सो बैक इन 1825 एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई एंड द नेम ऑफ दिस मूवमेंट वाज चाइल्ड सेवर्स मूवमेंट. ये जो चाइल्ड सेवर्स मूवमेंट थी इट चेंज द एंटायर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स. अब ये जो चाइल्ड सेवर मूवमेंट थी अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट जुवेनाइल डिलिक्वेंसी वाज द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर्स? दैट वाज एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स आई मीन टू से कि जिसमें इमिग्रेशन है, जिसमें आपके पास पोवर्टी है, यू हैव पुअर पेरेंटिंग, यू हैव लैक ऑफ फैसिलिटीज़. तो ये जो है अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट दीज ऑल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द juvenile delinquency. And this child civil movements was based on the principle of parents patry. And parents patry का मैं आपको बता दूँ this doctrine means कि state is the ultimate guardian of the children. So ये जो child savers movement थी इसका जो objective था, इसका goal था कि जो चिल्ड्रन हैं उन्हें इस एडवर्स एनवायरनमेंट से निकाल के एक अच्छे एनवायरनमेंट में रीलोकेट किया जाए सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द चिल्ड्रंस डेलिक्वेंसी. ठीक है, उन्होंने अपना रोल इस तरह प्ले किया कि उन्होंने इस चीज़ को पुट फोर्थ किया कि हम ये एडवर्स एनवायरनमेंट से निकाल के बच्चों को एक अच्छे एनवायरनमेंट रीलोकेट करें या उस एडवर्स एनवायरनमेंट को जो उनके इश्यूज़ हैं उन्हें जो है हम रिजॉल्व करें सो दैट दे कैन फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चाइल्ड सेवर्स मूवमेंट और इस चाइल्ड सेवर्स मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा और बताती चलूँ तो ये जो चाइल्ड सेवर्स थे दे एक्टिवली परस्यूड द पैसेज ऑफ द लेजिस्लेशन और इन्होंने एक लॉ अप्रूव करवाया जिसके अकॉर्डिंग जो है दे वर अलाउड, दे वर परमिटेड टू प्लेस द चिल्ड्रन इन द रिफॉर्मेटरीज. अब ये जो इनका गोल था इन टू रिमूव द चिल्ड्रन फ्राम द एक्सट्रीम पॉवर्टी इट वॉज रियली एडमायरेबल बट इसका जो आउटकम था इट वॉजंट पॉजिटिव इनफ. इससे हुआ ये कि इट टर्न चिल्ड्रन इनटू पर्सन विदाउट लीगल राइट्स. बच्चों को जो है डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में, पुअर हाउसेस में एंड ऑर्फनेजेस में जो है वो प्लेस किया गया और वहाँ पे जो है दे वर पुअरली ट्रीटेड, दे वरंट गिवन द रिक्वायर्ड अटेंशन. तो इसका आउटकम कितना पॉजिटिव नहीं निकला लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर. 1825 में जो एक बहुत फेमस एक जो इसी तरह रिफॉर्मेटरी यू कैन से वो थी दैट वाज इन न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रेफ्यूज और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स दे वर कैप्ट. और लेकिन उन सब लोगों को, उन सब बच्चों को जो है वो ऐसे समझा जाता था दैट लाइक दे वर द थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी एंड द सोशल ऑर्डर. सो इट वाजंट बेनिफिशियल इनफ. ये जो चाइल्ड सेवर मूवमेंट्स थी कोशिश बहुत की गई बट उससे कोई इतना जो है एक अच्छा चेंज नहीं लाया जा सका सोसाइटी में. इसी दौरान जो है एक अनदर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी वाज द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि द पीरियड बिटवीन द 1850s एंड द ग्रेट डिप्रेशन तो उस दौरान जो है न्यूयॉर्क से 2,50,000 अबेंडेंट चिल्ड्रन को न्यूयॉर्क से जो है ऑर्फन ट्रेन्स पर बैठाया गया एंड देन दे वर रिलोकेटेड टू द लोकेशंस इन द वेस्ट जहाँ पे डिफरेंट जो हैं आपके जो क्रिश्चियन फार्म फैमिलीज थी दे अडॉप्टेड दोज चिल्ड्रन.
जो ये प्रोसेस था फाइंडिंग द न्यू होम्स फॉर द चिल्ड्रन, ये बहुत एक हैप्पीजर प्रोसेस था। इसमें होता ये था कि टाउन मीटिंग्स होती थी अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे फार्म फैमिलीज़ जो हैं वो जो ट्रेन्स बच्चे ऑर्फन्स लेके आती थी, उन्हें जो है वो अडॉप्ट अपनी पसंद से वो कर लेते थे। जिन बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाता था, जो मीन्स के जो सेलेक्ट नहीं होते थे, उन्हें ट्रेन पे वापस बैठा के जो है अगले जो है टाउन में अगली उधर भेज दिया जाता था। और जो बच्चे अडॉप्ट जिन्हें कर लिया जाता था, उनके पास 1 साल होता था कि दे उन्होंने डिसाइड करना होता था कि क्या वो इसी फैमिली के साथ रहेंगे या इन्हें, अगर वो कहते थे कि नहीं हमने इस फैमिली के साथ नहीं रहना, तो उन्हें जो है उन्हें वापस ट्रेन पर बैठा के उन्हें नेक्स्ट टाउन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जहाँ पे कोई और फैमिली जो है उन्हें अडॉप्ट कर लेती थी। तो ये भी जो था ये भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। आप खुद ही सोचें कि एक बच्चे को ऑलरेडी बच्चा जो है उसके माइंड पे क्या इम्पेक्ट पड़ता होगा कि ऑलरेडी एक फैमिली ने उससे, पहली बात तो यह है कि अडॉप्ट किसी को किया है किसी को नहीं किया। सेकेंडली अगर नहीं अडॉप्ट किया देन उसे नेक्स्ट उसके ऊपर जो है नेक्स्ट फैमिली के पास भेजा गया है। तो यू कैन जस्ट आप आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चों के जहन पे क्या इस चीज़ का असर पड़ता होगा। जब जो जैसा चाइल्ड सेवर्स मूवमेंट थी या ये जो यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट था ये इतना इफेक्टिव नहीं साबित हुआ, लेकिन जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स थे दे कंटिन्यूड लुकिंग फॉर न्यू सॉल्यूशंस बिकॉज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है इट वाज लाइक ग्रोइंग। तो उसे कॉम्बैट करने के लिए जो है जो डिफरेंट जो प्रोसीजर्स थे एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस थे उनके ऊपर गौर करते थे। और इसमें जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो रेमेडी थी इट वाज द क्रिएशन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट इन कुक काउंटी इलिनॉय। और ये जो है कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुई थी, इन जुलाई 1899। इस जुवेनाइल जो कोर्ट थी इट अटेम्प्टेड टू क्लोजली सुपरवाइज प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे जैसा पहले तो था ना कि रिफॉर्मेटरीज में जो है बच्चों को रीलोकेट कर देंगे और वहाँ पे उन्हें सुपरवाइज किया जाएगा। यहाँ पे इस कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो सुपरविजन थी इट वाज नॉट इन द रिफॉर्मेटरी, बल्कि बच्चे के अपने ही घर में अपनी ही कम्युनिटी में जो है उसकी सुपरविजन की जा रही थी। ये जो था ये इस कोड का एक पॉजिटिव जो है ये एक एस्पेक्ट था। इसके अलावा ये था कि इस जो जुवेनाइल कोर्ट थी इसके प्रोसीजर्स दे वर सिविल इट एज़ कम्पेयर टू द क्रिमिनल, ठीक है। बिकॉज ये जो कोर्ट थी इट वाज स्पीयर हेडेड बाय द सोशल वर्कर्स। तो ये जो कोर्ट मूवमेंट थी इट वाज सिविल इन नेचर। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये एक जो थॉट थी वो प्रिवेल थी दैट चिल्ड्रन हैड टू बी ट्रीटेड एंड नॉट टू बी पनिश्ड। और जो जज था इट वाज अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से अ वाइज एंड काइंड पेरेंट। सो ये जो न्यू प्रोसीजर था कोर्ट प्रोसीजर, इसने जो है जुवेनाइल्स को एडल्ट अफेंडर से जो है सेग्रीगेट कर दिया। एंड ये जो जुवेनाइल कोर्ट थी इलिनॉय की, इसने रीअफर्म किया अंडरस्टैंड किया द डॉक्ट्राइन ऑफ पेरेंट्स पैट्री, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अकॉर्डिंग टू इट इनका जो था ऑब्जेक्टिव ये था कि दे हैव टू गिव मोर अटेंशन टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन रादर देन देयर राइट्स। सो ये एक बहुत पॉजिटिव जो है ये एक अप्रोच थी टूवर्ड्स कॉम्बैटिंग द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और बच्चों को ट्रीट करने में जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की हिस्ट्री में एक मेजर जो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इट अकर्ड इन 1974 एंड इट वाज द जुवेनाइल जस्टिस एंड डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन एक्ट। और इसी के अंडर जो है आपके पास इन्होंने क्रिएट किया द फेडरल ऑफिस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एंड डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन। और यहाँ पे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है इस ऑफिस का बिकॉज ये जो ऑफिस था इट फंडेड रिसर्च टू वैल्यूएट जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम्स। और इन्होंने डिसमिनेट की रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जिससे क्या हुआ कि और सॉल्यूशंस जो हैं लेटर ऑन जो है वो पुट फोर्थ किए गए। सो ये थी ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अगर आपको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के भी आए तो यू कैन जस्ट राइट ऑल दीज और आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। और डेलिक्वेंसी के हवाले से आए हिस्ट्री ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, तो उसके अंदर भी जो है यही सब कुछ जो है यू विल राइट इट। So I hope that it is clear to you all. If you still have any question, you can just always ask in the comments and I will try my best to respond to you all. Thank you.